एंड सबसे पहले कमेंट करके बताओ क्या हालचाल है सभी के, फिर देखेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, कर दिया? सो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। So today we will solve this problem which name is minimum number of operations to make array empty. Lead code 2870 problem. So let's read the problem statement directly. So you are given a zero index array nums consisting of positive integers. There are two types of operations that we can perform. We can apply any number of times. Choose two elements with equal values and delete them from an array. From the array, choose three elements with the equal values and delete them from the array. Okay. Return the minimum number of operations required to make the array empty or -1. It is not possible. When it is not possible, then return -1. So the problem is saying that we have given an array and the values in the array is repeating. Like 2 is here, 2 is repeating 4 times, 3 is repeating 3 times, 4 is repeating 2 times. Okay. So we can perform two operations. Either we can delete two elements in one operation or we can delete three elements in one operation. So we have to return the minimum number of operations required to make the array empty. Okay, or if it is not possible, then we have to return -1. So the problem is saying this. So let's think about the approach. We have to find the minimum number of operations. So minimum number of operations कैसे हो सकते हैं? Like we can delete three elements. तभी elements three elements को delete कर देंगे तो minimum number of operations आ जाएंगे. ठीक है? It depends कि तुम्हारा array दिया कैसा है. Array की size पे depend करता है. ठीक है? So let's see the approach for this problem so that we can understand properly. Here we can remove two or three elements in one operation and we have to find the minimum number of operations. Okay. So first example is this one 2 3 3 2 2 4 2 3 4. So सबसे पहले मैपिंग करेंगे इसकी. अब क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा कि यार मैपिंग क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमको हमको क्या करना है कि अकरेंस निकालनी है. 2 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स. यू कैन सी 2 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स. सो उसको देखना है कितनी बार रिपीट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा अपनी फाइनल आंसर. सो हमको एक मैप करनी पड़ेगी. 2 is repeating 4 times, 3 is repeating 3 times, and 4 is repeating 2 times. So if 2 is repeating 4 times, so it can be like 2 2 2 2. Then we can perform this operation. We can take two elements and delete them. We can take two elements and delete them. 3 is repeating 3 times, so we can take all three elements and delete in one operation. 4 is repeating two times, so we can take two elements and delete them in one operation. Why we are taking two operations in this? Because if we take three elements, मान लो 2 2 2 एक बार में डिलीट कर दिया तो हमको 2 बचेगा. एक ही 2 बचेगा जो कि एक वैलिड नहीं है, क्योंकि आइदर वी कैन परफॉर्म टू एलिमेंट्स, वी कैन डिलीट टू एलिमेंट्स और वी कैन डिलीट थ्री एलिमेंट्स. सो दो ही कंडीशन है हमारे पास. तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होगा, कैसे हमको निकालने होंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे इसमें. ठीक है, तो हमको ये दे रखा है कि 2 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स कैन बी रिटन एज 2 2 2 देन 2. बट single 2 is not a valid answer because either we can delete two elements or three elements. We can't delete one element. So इसको ऐसे लिखना इसको वैलिड नहीं है. ठीक है, वन पेयर कांट बी एग्जिस्ट. ओके, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको मैं मान रहा हूँ कि यार ये वैलिड है. ठीक है, आंसर निकालने के लिए मान रहा हूँ कि ये वैलिड है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन बाई थ्री प्लस एन मॉड्यूलो थ्री. एन बाई थ्री क्या देगा? थ्री बाई थ्री वन ऑपरेशन. ये तो वन ऑपरेशन हो जाएगा. और एन मॉड्यूलो थ्री क्या देगा? वन. फोर मॉड्यूलो थ्री इक्वल टू वन होता है ना. तो ये एन मॉड्यूलो थ्री या तो जीरो दे सकता है मेरे को, या वन दे सकता है, या टू दे सकता है. टू से ज्यादा तो दे नहीं सकता. अगर एन मॉड्यूलो थ्री जीरो देता है तो ये मेरा एरे किस तरीके का होगा? टू 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 थ्री एलिमेंट्स है, थ्री मॉड्यूलो थ्री जीरो हो गया और थ्री बाई थ्री वन ऑपरेशन में ये अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, if my n modulo 3 is 1, so my array will be like 2 2 2 then again 2. So n divided by 3 will be 1 and n modulo 3 here 2 is repeating 4 times, so 4 modulo 3 will be 1. So we can write like this. If 2 2 2, if we are taking all three elements, so single 2 will be there. So single 2 can't be exist. So we can do this like we can write like 2 2 and 2 2. We can make a pair of two elements. Okay, तो यहाँ पर दो elements का pair बना दिया मैंने 2 2 and 2 2.
तो टू टू और टू टू मतलब दो एलिमेंट्स को तो डिलीट कर सकता हूँ, मैं तीन को कर सकता हूँ, एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको दोनों एलिमेंट को डिलीट करूंगा, एक ऑपरेशन ये वाला लेगा, एक ऑपरेशन ये वाला लेगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं? दो हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे आंसर निकालो, एन मॉड्यूलो एन डिवाइड बाई थ्री, एन डिवाइड बाई थ्री क्या दे रहा है? चलो इसको देख लेते हैं पहले। एन मॉड्यूलो टू अगर टू होता है तो एरे मेरा इस तरीके का होगा कुछ, मैं रैंडम एरे ले रहा हूँ, बट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एन मॉड्यूलो टू टू होगा तब किस तरीके का एरे होगा। तो एन डिवाइड बाई थ्री कितना होता है? वन हो जाएगा, और ये दो बच जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। इनको एक साथ ले लेता हूँ, इनको एक साथ ले लेता हूँ, फाइनल आंसर दो आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि दो आ गया। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा एन मॉड्यूल थ्री नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जीरो होता है तब तो ये चीज आएगी ही नहीं, एन डिवाइड बाई थ्री से ही काम चल जाएगा। जैसे थ्री है, थ्री इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स, तो थ्री डिवाइड बाई थ्री कितना होता है? वन। वन ऑपरेशन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्री मॉड्यूलो थ्री क्या होता है? जीरो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, एन मॉड्यूलो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन वी हैव टू ऐड प्लस वन इन अवर आंसर। जब ये एन मॉड्यूलो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्यों करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। जब एन मॉड्यूलो थ्री इक्वल टू वन था, तब मेरे एरा एरे कुछ इस तरीके का था, ठीक है, टू 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 देन अगेन टू। तो मैं क्या करता था कि तीन का एक पेयर बना लेता था और एक टू सिंगल टू बच जाता था। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टू टू और टू टू, इस तरीके से लिख सकता हूँ, टू का पेयर बना लूं मैं दोनों साइड, तो मेरा आंसर कितना आएगा? दो। क्यों क्यों आएगा? हम एक पेयर मतलब ऐसे देख रहे हैं, आंसर दो क्यों आएगा? प्लस वन ऐड ऐड कर रहा हूं मैं, इस तरीके से मानो कि मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा सिंगल टू बचा है, अगर मैं प्लस एक और टू जोड़ दूंगा मान लो इसमें, तो ये पेयर बन जाएगा। इस तरीके से देख लो कि इसको मैं है ना, चार टू रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, टू फोर बार रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो दो आंसर आ जाएगा, दो ऑपरेशन पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, एन डिवाइड बाई थ्री से मेरा कितना आया था आंसर? फोर। यहाँ अकरेंस कितनी है? चार। तो चार डिवाइड बाई थ्री कितना आता है? वन आता है। और चार मॉड्यूलो थ्री कितना आता है? वन आता है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो प्लस वन ऐड कर दूंगा, वन प्लस वन टू आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको देखो कि ये वाला एरे है मेरे पास, ये वाले में क्या आया आंसर? आया दो आया आंसर, ठीक है। ये दो कैसे आया अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ कितना, एन की वैल्यू कितनी है? फाइव है, फाइव। तो टू इज रिपीटिंग फाइव टाइम्स, सो फाइव डिवाइड बाई थ्री कितना होता है? वन होता है। और फाइव मॉड्यूलो थ्री करेंगे जब हम, तब क्या आएगा? मॉड्यूलो की नहीं देख रहा हमको, जब एन मॉड्यूलो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो होता है, फाइव मॉड्यूलो थ्री कितना आता है? टू आता है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो है तो फाइनल आंसर में एक ऐड कर देंगे। यहाँ से एक आया था, फाइनल आंसर में एक ऐड किया, दो आ गया, ठीक है। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि जब n मॉड्यूलो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन वी हैव टू ऐड प्लस वन इन अवर आंसर, ओके, फाइनल आंसर। बट इफ काउंट इक्वल टू वन, इफ मान लो टू इज रिपीटिंग ओनली वन टाइम, देन इसके प्रीवियस में कुछ है नहीं, ठीक है, ओनली वन टाइम रिपीट कर रहा है, तो वन टाइम रिपीट कर रहा है कोई चीज, तो मैं उसका कोई भी पेयर बना ही नहीं सकता। बना कैसे सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि टू तो एक ही बार रिपीट कर रहा है, कम से कम मेरे को दो बार तो चाहिए, तीन बार तो चाहिए। एक ही बार रिपीट कर रहा है, एक ही बार रिपीट कर रहा है, तो मैं उसका कोई पेयर नहीं बना सकता, देन वी हैव टू रिटर्न माइनस वन इन दैट केस। सो इसका ड्राई रन देख लेते हैं। ड्राई रन इस एग्जांपल के कर रहा हूँ, ठीक है। हियर टू इज रिपीटिंग फोर टाइम्स, सो फोर डिवाइड बाई थ्री प्लस फोर मॉड्यूलो थ्री। मैंने बोला था फोर डिवाइड बाई थ्री प्लस फोर मॉड्यूलो थ्री, लाइक दिस। देन टू इज थ्री इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स, सो थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस थ्री मॉड्यूलो थ्री। टू इज रिपीटिंग फोर, फोर इज रिपीटिंग टू टाइम्स, सो टू डिवाइड बाई थ्री प्लस टू मॉड्यूलो थ्री, ठीक है। अब देखो फोर डिवाइड बाई थ्री कितना हो गया? वन हो गया। फोर मॉड्यूलो थ्री, वन आ रहा है, पर वन नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो प्लस वन ऐड कर दूंगा मैं। नॉट इक्वल टू जीरो तो प्लस वन ऐड करूंगा, ठीक है। थ्री डिवाइड बाई थ्री कितना आ रहा है? वन आ रहा है। थ्री मॉड्यूलो थ्री जीरो आ रहा है, जीरो के केस में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। टू डिवाइड बाई थ्री कितना आता है? जीरो। टू मॉड्यूलो थ्री कितना आता है? टू। तो टू ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। टू मॉड्यूलो थ्री टू आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है ना, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो प्लस वन ऐड कर देंगे हम फाइनल आंसर में, तो प्लस वन ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करेंगे तो फोर हमारा आ जाएगा आंसर। सो अब कोड करते हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए, ठीक है। तो अब मेरे को सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, मेरे को एक मैप बनाना है जिसमें मैं अपने एलिमेंट्स को स्टोर करा सकूं, फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करा सकूं। तो मैं अनऑर्डर्ड मैप बना देता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप का, जिसका नाम होगा मैप। अब मैं फ्रीक्वेंसीज स्टोर करा रहा हूँ। नाउ आई एम फ्रीक्वेंट,
आई एम स्टोरिंग द फ्रीक्वेंसीज इन द मैप है। तो कैसे कराएंगे? फोर इंटा इक्वल टू जीरो टू आई लेस देन नम्स डॉट साइज देन आई प्लस प्लस और अरे यार ठीक है, मैप ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, अरे यार क्या कर दिया, प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। So now what I have done is I have stored the frequencies of each character, each integer in map. Now what I will do, अब मेरे स्टोर तो करा लिया है, तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को एक आंसर बनाना पड़ेगा दैट वी हैव टू रिटर्न फाइनली, हाँ, जो कि मैं फाइनली रिटर्न करूंगा। ठीक है, अब मैं मैप को ट्रेवर्स कर रहा हूँ आइट्रेटर के थ्रू। सो और फोर ऑटो आई टी बिलोंग्स टू मैप। अब मैं चेक करूंगा सबसे पहली कंडीशन, इफ आई टी डॉट सेकेंड, ये मेरी पहली कंडीशन रहनी चाहिए। इफ आई टी डॉट सेकेंड इक्वल टू बट, अगर मेरा किसी एलिमेंट की एक ही बार फ्रीक्वेंसी है, कोई एलिमेंट एक ही बार आ रहा है, तो मैं क्या उस केस में क्या करूंगा? रिटर्न माइनस वन, क्योंकि कम से कम मेरे को दो बार तो चाहिए, कम से कम एटलीस्ट टू टाइम्स इट शुड कम। बट अगर कोई एक ही टाइम आ रहा है तो उस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं रिटर्न माइनस वन कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि आई टी डॉट सेकेंड को शो कर रहा है। ठीक है, आई टी डॉट सेकेंड लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए काउंट का वेरिएबल बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई टी डॉट सेकेंड मीन्स, एक तो आई टी डॉट फर्स्ट होता है, आई टी डॉट फर्स्ट क्या दर्शा रहा है? इस एलिमेंट्स को, टू, टू को दर्शा रहा है। और आई टी डॉट सेकेंड क्या दर्शा रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी को। टू इज रिपीटिंग फोर टाइम्स, सो आई टी डॉट सेकेंड विल बी फोर, ऐसे। ठीक है, int count equals to id dot second. Now what I will do, I will add the count like answer plus equals to count divided by थ्री। मैंने बोला था ना n by थ्री ऐड करेंगे, n by थ्री ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इफ चेक करूंगा काउंट मॉड्यूलो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ऐसा है काउंट मॉड्यूलो थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर को एक से बढ़ा दूंगा, आंसर में एक ऐड कर दूंगा। मैंने बोला था ना एन बाई थ्री तो करूंगा ही, बट एन मॉड्यूलो थ्री मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है, उस केस में मैं आंसर में वन ऐड कर दूंगा। तो मैंने आंसर में वन ऐड कर दिया और फाइनली आई विल रिटर्न माई आंसर। सो नाउ लेट्स रन दिस एंड सी इफ दिस विल वर्क और नॉट। इट इज वर्किंग परफेक्ट। सो सबमिट कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, पूरा मस्त चल रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन। सो टाइम एंड स्पेस दोनों ही बिग ऑफ एंड रहेंगे। ठीक है, वो तो आप जानते हो क्यों रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार लूप को आइटरेट कर रहे हैं, एक बार तो आइटरेट कर ही रहे हैं ना पूरी एरे को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना रह गया, बिग ऑफ है। कंप्लीट करता हूँ। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी बिग ऑफ एंड so this was the complete solution. If you find this helpful then please like, share and subscribe and comment करके बता देना कि क्या हालचाल है सभी के। ठीक है, सबसे पहले यही बोला था मैंने, कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो कर देना। ठीक है, बाय सभी को।